हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। और आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे चेन स्प्रॉकेट और पीछे वाले स्प्रॉकेट के बेयरिंग को चेंज करते हैं। सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट हाउ डू वी रिप्लेस द चेन स्प्रॉकेट ऑफ my motorcycle, which is a Yamaha SS125 or Yamaha Gladiator, and today we'll learn how to change the chain sprocket units and also the rear sprocket bearing with the use of basic tools that I have with me. So we start by removing the chain cover. chain cover को निकालेंगे। 10 नंबर का बोल्ट से लगा हुआ रहता है, दो 10 नंबर के बोल्ट्स होते हैं, उनको निकालना है। So I'm just removing two 10 mm bolts that holds the plastic chain cover. And the next step is the removal of the side panel, the left hand side where the battery sits. I just remove it using the key. The next step is to remove the front sprocket cover. The front sprocket cover is held by two screws. दो screws से जो सामने वाला sprocket का cover है वो लगा रहता है। प्लास्टिक का पार्ट है, आराम से निकालिए। उसके ऊपर एक वायर रहता है, उसको निकाल लीजिए हुक से। Now the next step is to remove the front sprocket. Front sprocket generally जो stock sprocket होता है जो Yamaha से आता है वो एक ही बोल्ट से लॉक्ड रहता है, लॉक पिन से। इस केस में दो बोल्ट से, क्योंकि ये मैंने चेंज किया था। सो दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल फ्रंट स्प्रॉकेट, सो इट हैज़ टू बोल्ट्स बट जनरली इट विल बी सिंगल बोल्ट. So the next step that I am doing here is removing the swing arm axle or the swing arm bolt. I am doing this because I wanted to remove the swing arm and clean it. Either ways, if you do not clean the swing arm as well, you have to remove it because the chain is a sealed unit and sealed chain needs the swing arm to be removed in order to install the chain. So swing arm को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि जो chain है वो single unit है, उसमें कोई linkage नहीं है, बीच में से आधा नहीं है या टूटा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्विंग आर्म निकालना ही पड़ेगा। सो स्विंग आर्म बोल्ट को निकालेंगे। साइड में जो दो रियर फुट पैक के लिए जो माउंटिंग ब्रैकेट टाइप के होते हैं उनको भी निकालना पड़ता है, जो कि मेरे केस में बहुत ज़्यादा हार्ड था। So I'm undoing the suspension here because I wanted to remove the swing arm to clean it. ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है अगर आपको निकाल के क्लीन नहीं करना है स्विंग आर्म को। सो ये ऑप्शनल स्टेप हुआ। Alright, now I'm removing the axle nut of the wheel. So axle nut को निकालेंगे, जो कि एक मेजर स्टेप है, आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि व्हील बाहर निकालना है। एक्सेल नट के साथ साथ आपको ब्रेक लाइंस भी डिस्कनेक्ट करने हैं, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखाऊंगा। एंड नाउ आई हैव रिमूव्ड द ब्रेक लाइन। ऑल्सो द ब्रेक रिटेनिंग प्लेट हैज़ टू बी रिमूव्ड। वो भी एक बोल्ट से लगा रहता है, उसको भी निकाल लेना है। The next step is to remove the bolt, the axle bolt and also the wheel. So make sure you use nylon mallet on all the screws and bolts as a normal hammer can damage the bolts. So hammer मतलब हथौड़े को यूज़ नहीं करेंगे, nylon mallet यूज़ करेंगे ताकि बोल्ट डैमेज ना हो जाए या थ्रेड्स ख़राब ना हो जाए। अब चेन को हटा के व्हील को बाहर खींच लेना है। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप वेयर आई एम रिमूविंग द व्हील। आई हैड फॉरगॉटन टू रिमूव द ब्रेक रिटेनिंग प्लेट, जो कि मैं अब कर रहा हूँ। And after that I will pull out the wheel by putting aside the chain, the old drive chain. By the way, this chain ran for a good 80,000 kilometers. This is the stock chain that came with the bike from the company, so you can understand the quality of the chain. 80,000 kilometers, the chain is still in an okayish state, not very bad I would say. So I pulled out the rear hub and the sprocket with that. You can see the rubber grommets, they also need to be removed and replaced. So if you observe closely, there is the broken sprocket bearing. Sprocket bearing टूट गया था, बिल्कुल पीसेस हो गए थे उसके, और उसके वजह से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी जब बाइक रन कर रहा था। So I had to remove the broken sprocket bearing, which is a difficult task because once it breaks into pieces, it becomes very challenging to remove it from its place. So right here I am removing the locking plate, basically bending it back into its place so that I can unbolt the rear sprocket from the hub, which is the next step. इस लॉकिंग प्लेट को हमने निकाला ताकि बोल्ट बाहर आ जाए और रियर स्प्रॉकेट को हब से बाहर निकाल पाए हम लोग। You can very well expect it to be very hard to come off because these parts get really hot and
there are heat cycles going on these, so the bolts really get stuck. So बोल्ट हार्ड होने वाले हैं, थोड़ा सा दम लगेगा यहाँ पे, और अच्छे स्पैनर का यूज़ कीजिए ताकि बोल्ट का हेड जो है वो टूट ना जाए. एंड दैट्स आवर न्यू स्प्रॉकेट. नया स्प्रॉकेट हमारे पास है, रियर स्प्रॉकेट. उसको अब लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि हमारा एंड देयर कम्स आउट आवर ओल्ड रियर स्प्रॉकेट. रियर स्प्रॉकेट बाहर आ गया पुराना वाला, और अब लगाते हैं नया वाला. एंड देयर कम्स द न्यू रियर स्प्रॉकेट एंड विल बोल्ट इट इन प्लेस यूजिंग द सेम मैकेनिज्म, द बोल्ट्स. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू पुट द लॉकिंग प्लेट्स. These plates basically lock the bolts, as there is no thread locker that is being used, so we'll use these plates to lock the bolts into place. So the next step is to clear the hub. हब को अच्छे से साफ़ कर लेंगे. डीजल का यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं. अच्छे से डीग्रीजिंग करना है ताकि हम जो बियरिंग है उसको बाहर निकाल पाए. स्प्रॉकेट बियरिंग जो है वो इस हब के अंदर बैठता है. सो वी हैव टू मेक श्योर वी क्लीन इट प्रॉपरली so that the bearing comes out easily. There would be a lot of grease and gunk over there and we need to clean it really well. Alright, so that is the rear sprocket on the hub, the bearing on the left hand side and the oil seal on the right hand side. Unfortunately मेरे पास ऑयल सील एक्स्ट्रा नहीं था या नया नहीं मिला था मुझे, तो मुझे रीयूज़ करना पड़ा. मैंने उसी पे ग्रीस लगा के उसको रीयूज़ किया है. हर चीज़ पे हम ग्रीस लगाएंगे उसे बिठाने से पहले. Coming to the next step, I am removing the bearing, the broken sprocket bearing from the hub. और इसे निकालने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर और हैमर का यूज़ करना पड़ेगा. हैमर मतलब नायलॉन मैलेट यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो रिमेंबर इन ग्लैडिएटर देयर इज़ अ सर्क्लिप. सर्क्लिप से जो बियरिंग है उसको लॉक्ड रखा जाता है, तो उसके लिए आपको सर्क्लिप पुलर चाहिए होगा. सो गाइज़, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बियरिंग है उसको निकालने के लिए थोड़ा सा हीट करने से वो ईज़िली बाहर आ जाता है, क्योंकि मेटल जो है हीट करने पे एक्सपैंड करता है और बियरिंग आराम से बाहर आ जाता है. सो इन माई केस द बियरिंग वॉज स्टक इवन आफ्टर रिमूविंग द सर्क्लिप. सो वॉट आई डिड इज़ आई heated up the hub a little bit using a heat gun, and after that the bearing really came out pretty easily. So ये जो टिप है ये आप ध्यान में रखिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा आपका काम करना कि कैसे बियरिंग निकाला जाए. थोड़ा सा हीट करने से एक्सपेंशन के कारण बाहर रहता है बियरिंग. So due to metal expansion during heating, the bearing comes out very easily. So keep that in mind. This will make your job a little easier and you don't have to hit it as hard as you would have had to if it was not heated. Once the old bearing is out, we'll put back the new bearing. So नए bearing को बिठाएंगे, पर ध्यान दीजिए कि कौन सा साइड आउटवर्ड रहेगा. सील वाला साइड आउटवर्ड रहेगा. जैसे आप देख सकते हो ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो सील है बियरिंग का, वो बाहर की तरफ रहेगा. That would be the outward side of the bearing and the inward side would be the bearing part that you might have seen before. तो मैं इसी सर्क्लिप की बात कर रहा था और ये है सर्क्लिप पुलर. So we'll use the circlip puller to put back the circlip in place. The circlip is basically a lock for the bearing so that it doesn't come out during usage. So circlip बहुत necessary है इस केस में, इस डिज़ाइन में, क्योंकि यही लॉक है इस बेयरिंग को जगह पे रखने का. और जैसे कि आपने देखा सर्क्लिप बिल्कुल सही से बैठ गई. अब बारी है ऑयल सील लगाने का. वही पुराना ऑयल सील जिसको हमने ग्रीस किया था उसको बिठाएंगे. वैसे हमने बियरिंग को भी ग्रीस किया है, वो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है, बट हर चीज़ को ग्रीस किया है हमने बिठाने से पहले. बस जेंटली नायलॉन मैलेट से टैप करने से ये जगह पे बैठ जाएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ नॉट अ मैंडेटरी स्टेप. ये मैंने किया है क्योंकि मुझे स्विंग आर्म को क्लीन करना था, थोड़ा ओवरहॉलिंग करना था, थोड़ा सा पेंट टचअप भी देना था. सो इसलिए मैंने किया. सो मैंने पेट्रोल का यूज़ किया क्योंकि पेट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एब्रेसिव होता है ऑन डर्ट एंड ग्रीज. सो आई टुक माई ओन स्वीट टाइम टू क्लीन द स्विंग आर्म विच वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था. So I basically used fuel, which is petrol, gasoline, and I used a toothbrush to clean all the gunk that was deposited on this swing arm for the last 80,000 plus kilometers that this motorcycle has been operated. It was very satisfying at the end of the day when everything got cleared up and it was very clean. I also did a paint touch up on the swing arm which I did not shoot. But yeah, that's about it. Cleaning and maintaining the swing arm once in a while is a good thing to do.
सो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, जो कि होगा चेन को लगाना। चेन सील्ड यूनिट है, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, it is one single sealed unit and we have to fix it that way. It's highly not recommended to break it into 2 pieces or split it into 2 pieces to install it, which some mechanics do. Please do not do that. Install it the way it has come from the company. जैसे कंपनी से आया है नॉन स्प्लिट हालत में वैसे ही उसको लगाइए। उसको बीच में से तोड़ के या अलग करके स्प्लिट करके मत इंस्टॉल कीजिए, कुछ मैकेनिक्स वैसे करते हैं। और ये है चेन गाइड, मेरे पास नया चेन गाइड था, मैंने नया चेन गाइड इंस्टॉल किया। इससे चेन का नॉइज़ बहुत हद तक कम हो जाता है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है जब आप एक्सेलरेट या डिसेलरेट करते हो। Chain guide is a very important thing to be installed. My chain guide was broken, so I got a new piece and I installed it at this point in time as I removed the swing arm bolt. After everything is aligned properly, we'll hit back the swing arm bolt into place. So nylon mallet का यूज़ करके हम बोल्ट को जगह पे लगा देंगे। अब इस एल्यूमिनियम पार्ट को भी लगा देंगे जिस पे रियर फुट रेस्ट लगा रहता है। सो वी विल इंस्टॉल दिस एल्यूमिनियम पार्ट ऑन विच द रियर फुट पेग इज इंस्टॉल्ड ऑन द बाइक एंड विल पुट बैक द नट एंड ऑल्सो देयर इज अ 12 mm bolt for this part to be fastened. So now it's time to install the front sprocket or the smaller sprocket. जो फ्रंट स्प्रॉकेट है उसको लगाएंगे, उसके साथ एक लॉकिंग क्लिप आता है जो कि साथ में ही आएगा सेट में, वो लगाना है। उसके साथ जो लॉकिंग बोल्ट है वो मैंने रीयूज़ किया क्योंकि वो नहीं आया था इस सेट में। सो चेन को पहले स्प्रॉकेट पे पहनाएंगे, फिर स्प्रॉकेट को जगह पे लगाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू फर्स्ट पुट द चेन ओवर द स्प्रॉकेट एंड देन प्लेस द स्प्रॉकेट इनटू प्लेस। ड्यू टू लो gaps and clearances, it's difficult for you to install the chain once the sprocket is in place. So that's a small tip that might help you do this job. And once the sprocket is in with the chain in place, we will lock it using the locking pin and the bolt that locks the sprocket with the locking pin or the locking clip. So जैसे ही लग जाएगा हम इसको लॉक कर देंगे लॉकिंग पिन के माध्यम से और बोल्ट लगा देंगे, बोल्ट को प्रॉपर टॉर्क से लगा देंगे। और ये लग गया हमारा फ्रंट स्प्रॉकेट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रीइंस्टॉल और रीप्लेस द रबर बूट्स दैट सिट्स इन बिटवीन द हब एंड द व्हील। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द शॉक दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंजन टू द व्हील। सो इसको भी रिप्लेस तब कर लेना चाहिए जब आप चेन स्प्रॉकेट रिप्लेस करते हो। इससे जो लाइफ है इस चीज़ का या चेन स्प्रॉकेट का वो भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये रबर न्यू है तो मुझे बॉडी वेट का इस्तेमाल करना पड़ा इसको जगह पर बिठाने के लिए। आई जस्ट यूज माई बॉडी वेट टू इंस्टॉल द हब इनटू द व्हील एज द रबर वाज ब्रांड न्यू। This is again not a mandatory step because not everyone will remove the complete swing arm, so you might not have to do or perform these steps. So I am basically installing back the swing arm into the suspension and installing the suspension bolts in general. So ये step हमें करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने पूरा swing arm बाहर निकाला था और उसकी वजह से मुझे suspension और swing arm को लगाना पड़ रहा है अभी। That's my Instagram handle and do follow me if you haven't yet. और यहाँ पे हम चेन स्लैक एडजस्टर को रीसेट कर रहे हैं। आई एम बेसिकली रीसेटिंग द चेन स्लैक एडजस्टमेंट mechanism because it's a new chain and it will be much smaller in size as the chain has not expanded yet. So इनको रीसेट कर लेंगे, रीसेट करने के बाद ही व्हील को बिठाएंगे, नहीं तो व्हील बैठ नहीं पाएगा because the chain is pretty small. Also use this opportunity to clean the swing arm or the adjustment parts because not every time you will have access to them. Now I am installing the chain on the rear sprocket and this is the last step before putting back the wheel into place. So अब मैं चेन को इंस्टॉल कर चुका हूँ रियर स्प्रॉकेट के ऊपर और ये है स्पेसर लेफ्ट हैंड साइड वाला।
आपको पता होना चाहिए लेफ़्ट एंड राइट के जो स्पेसर्स है वो कौन से हैं। उनको लगाने से पहले उसमें हल्का सा ग्रीस लगा के फिर उसको हमने लगाया है, और एक बार स्पेसर लग जाए उसके बाद आपको एक्सेल बोल्ट लगाना है। सो राइट नाउ आई एम ग्रीजिंग द एक्सेल बोल्ट एज वेल, and once the greasing is completed I will install it back into place. This process requires a lot of muscle strength because you have to hold the wheel up into its position and only then you can push in the axle bolt. थोड़ा सा इसमें दम लगता है आपके हाथों का, क्योंकि आपको व्हील को अपने जगह पे पकड़ के रखना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से एक्सेल बोल्ट को अंदर डालना है। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उस प्रोसेस में कभी कभी आपका रिटेनिंग प्लेट निकल आता है या कभी कभी स्पेसर गिर जाता है। सो इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास हेल्प है, कोई और आपको थोड़ा मदद कर सकता है, सो ज़रूर हेल्प को लीजिए और उससे आपका काम जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। And our axle bolt is in place and I am basically fastening the nut now, the axle nut, and that is actually the second last process. After this I will be just adjusting the chain slack before finalizing everything, and also I will put back the brake lines and the brake retaining plate. That's how we set the chain slack. Chain slack हमने चेक कर लिया है, अब फाइनलाइज करने का टाइम आ गया है। चेन स्लैक एडजस्टर्स को लॉक कर देंगे। उसमें 2 नट्स होते हैं, दोनों नट को एक दूसरे के साथ टाइट करना होता है, उससे वो लॉक हो जाता है। After this we put back everything in the reverse order that we had removed. These are simple processes. If you have watched this video till here, I hope you have liked it and I hope that you have learned something new today. If you did, do give it a thumbs up and also share it with your friends and family who are interested in such videos. Thanks a lot for supporting the channel. बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।